हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज का। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो accommodation, what is accommodation? So here we have a notes for power of accommodation, so we are following points wise. I will be explaining each and every point, and wherever I need to explain in brief, I will be explaining in brief by taking separate page, blank page, so there is no need to worry. So this point accommodation is an eye can focus the image of the distant objects as well as the nearby objects on its retina by changing the focal length or converging power of its lens. बच्चों, जो कोई भी आई है, ह्यूमन आई है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, चाहे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो या फार अवे ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनका जो इमेज होता है, दैट इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड on the retina of our eye. And how we make the image of the object on the retina of our eye? By changing the focal length, or by changing the focal length of the eye lens. Or once you will change the focal length, definitely power of lens will also be changed. How? So as we know, power is equal to 1 upon f. So if you change the focal length, power will be changed. So the eye lens is convex in nature, so this is convex lens. So this is the first point. So whenever we are going to see the objects by our eyes, so whatever may be the distance of the object from our eye, in between near points and far points, we need to adjust the focal length. How to adjust? This is automatic process done by our eye. So focal length is getting adjusted. Once the focal length will be adjusted, the power of the lens will automatically adjusted, and all this adjustment will be done in such a way that the image of the object is getting formed on the retina. So this is the first point. Second point, here we have the focal length of eye lens is changed by the action of the ciliary muscles. So how actually the focal length of a human eye lens is getting changed? By the action of the ciliary muscles. These are present in our eyes. These ciliary muscles can change the thickness of the soft and flexible eye lens, and hence its focal length, which in turn change the converging power of the eye lens. So what is that point? Second point is the ciliary muscles actually change the thickness of the eye lens. So when the ciliary muscles is active for changing the focal length of the eye lens, so when the focal length of the eye lens will change, so that will automatically change the power of the lens. From here we can see power is equal to 1 by f. So once the focal length will be adjusted, power will be automatically adjusted. So who will adjust the focal length? So focal length of eye lens will be adjusted by ciliary muscles. So how ciliary muscles will adjust the focal length? So focal length will be adjusted by ciliary muscles. I can open here one blank page, okay, so that we can understand. You see, uh, power is equal to 1 upon f, right? So this focal length can be adjusted. So if focal length will be adjusted, power will be adjusted. So how to adjust the focal length? To adjust in the sense to change the focal length, right? Whenever we are going to look the object at different location in front of our eye, the first thing that we have to adjust is what? The focal length. Focal length of what? Focal length of our eye. To adjust focal length, to adjust focal length of human eye, to adjust focal length of human eye, ciliary muscles, ciliary muscles, ciliary muscles, to adjust focal length of human eye, ciliary muscles gets activated. So these ciliary muscles get activated, and how these ciliary muscles work?
So these are attached to the eye lens. So this is our human eye lens. So this is human eye lens. This is human eye lens. So बच्चों, this thickness of eye lens, the thickness of this eye lens is getting changed by the ciliary muscles. Okay, actually this is attached to suspensory ligament, and then suspensory ligament is attached to ciliary muscles. In this side also the same picture we have. These are suspensory ligaments, these are ciliary muscles. Okay, this black dot is ciliary muscles. Ciliary muscles. So these ciliary muscles adjust the thickness of this lens. So once the thickness of this lens will vary, the focal length of the lens will also vary. So the thickness as the thickness of eye lens as the thickness of eye lens vary, focal length of eye lens focal length of eye lens also vary also vary. So if the focal length of eye lens will vary, what will happen to the power of the lens will also vary. So that was the point we were discussing. So now come back to the previous page. So previous page was this point only, right? The focal length of eye lens is changed by the action of ciliary muscles, and these ciliary muscles can change the thickness of the eye lens, can change the thickness of eye lens, soft and flexible eye lens, and its focal length is getting changed. And if the focal length is getting changed, it means that there will be change in the converging power. Why we say converging power? Because the eye lens is converging in nature. What do you mean by converging in nature? This eye lens is going to converge the parallel beam of light rays at one point on the retina where the image is getting formed, or this eye lens, which we also call as converging lens, converging all the parallel beam of light rays or maybe diverging beam of light rays onto one point on the retina, or focus all the diverging rays or parallel rays which are coming from the distant object or maybe near object onto the retina in order to form the image of that particular object. So that's why we call this one as converging lens, and the power of converging lens we are calling as converging power. Next point we are going to discuss here. Next point is, when the eye is looking at a distant object at infinity, then the ciliary muscles of the eye are fully relaxed. This point is again very important. So when the eye is looking at a distant object, when the eye lens is looking at distant object, बच्चों जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, खास करके अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, तो द सीलियरी मसल्स देन द सीलियरी मसल्स ऑफ द आई आर फुल्ली रिलैक्स्ड. अंडर दैट कंडीशन में आई लेंस कैसा कंडीशन में होता है? फुल्ली रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है. दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी लुक एट far points, when we look at far points, so यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, for far away objects, for far away objects आई लेंस कैसा रहता है बच्चों? आई लेंस थिन होता है, और आई किस कंडीशन में होता है? फुल्ली रिलैक्स्ड. फुल्ली रिलैक्स्ड. फुल्ली रिलैक्स्ड है आई. ओके. सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए आई लेंस कैसा होता है? थिन होता है, फुल्ली रिलैक्स होगा. और जब आई लेंस थिन होगा बच्चों, तो फोकल लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा. व्हेन द आई लेंस विल बी थिन, जब यह थिन होगा, पतला होगा. ठीक है. तो जितना ज्यादा कर्वेचर होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा फोकल लेंथ होगा. सो इन दिस केस फोकल लेंथ विल बी मोर. So come back to the previous page. Let us observe. So when the eye is looking at a distant object or at infinity, then the ciliary muscles of the eye are fully relaxed. So next point we are going to discuss, the
रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स, द रिलैक्स्ड, जब बच्चों सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड है, अंडर दैट कंडीशन द रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स ऑफ द आई pull the suspensory ligaments, pull the suspensory ligaments attached to the eye lens tightly. कैसे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है, आई में जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है बच्चों, उसको टाइटली क्या करता है, पुल करता है। देखिए यहाँ पर द रिलैक्स्ड सीलियरी मसल्स ऑफ द आई पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच्ड टू द आई लेंस टाइटली। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, आप उस डायग्राम को देख सकते हैं। वो डायग्राम क्या था, आइए उसको देखते हैं। बच्चों यहाँ पर है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सो दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे होते हैं, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को, दोनों तरफ होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स बच्चों, सीलियरी मसल्स के थ्रू अटैच्ड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट आई लेंस के साथ अटैच्ड होता है। तो जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, अंडर दैट कंडीशन ये जो आई लेंस है वो रिलैक्स होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इस लेंस के दोनों साइड को पुल करता है टाइटली, और जब टाइटली पुल करेगा बच्चों तो ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और लेंस कैसा हो जाएगा, तो लेंस जो है आई लेंस वो थिन हो जाएगा, और जैसे ही थिन होगा तो इस लेंस का कर्वेचर जो है बड़ा होगा, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो यहाँ पर वापस आएंगे बच्चों, एंड इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, then suspensory ligaments in turn pull the eye lens, and due to which the eye lens gets stretched and becomes thin or less convex। बच्चों जब convex, जब लेंस थिन हो जाएगा, when the lens will become thin, जब सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा पुल अप होगा, और जब लेंस थिन हो जाएगा यहाँ पर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगा बच्चों, पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो जैसे ही थिकनेस बढ़ेगा लेंस का, वैसे ही फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा बच्चों, और पावर जो है वो घट जाएगा। मतलब लेंस जो है उसकी कन्वर्जेंस कैपेसिटी, कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो अगला पॉइंट यहाँ पर इसको समझेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, सो द थिन आई लेंस हैज लार्ज फोकल लेंथ, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, लार्ज फोकल लेंथ, बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल। व्हाई, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सो जैसे ही पुल अप होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, तो हमारा जो आई लेंस है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू पुल अप होता है दोनों साइड से, और लेंस थिन हो जाता है, और जैसे ही लेंस थिन होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और कन्वर्जिंग पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर इज कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, when the eye is looking at distant object, the eye is said to be unaccommodated। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं बच्चों, तो जो आई लेंस है उसके बारे में कहते हैं कि द आई इज सेड टू बी अनअकोमोडेटेड बिकॉज इट इज द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई। इस कंडीशन में ह्यूमन आई जो है वो कैसे कंडीशन में है बच्चों, रिलैक्स कंडीशन में। और जब आई लेंस रिलैक्स्ड है, जब आई रिलैक्स्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे this is the state of unaccommodated, this is the state of unaccommodation। Okay, so when we are under relaxed condition, when we look at far objects, और जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को, दूर की वस्तु को देखते हैं, under that condition our eyes are fully relaxed। So next point we are going to discuss, when the same eye has to look at a near objects, the ciliary muscles of the eyes contract. So what happens now, we are discussing the second case, and what is that second case, बच्चों जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, अंडर दैट कंडीशन क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स है आईज का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है सिकुड़ना, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, टाइट हो जाता है, और लेंस जो है वो थिन हो जाता है। बट जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं, तो उस कंडीशन में जो सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा,
द कॉन्ट्रैक्टेड ciliary muscles make the suspensory ligament loose। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को क्या कर देता है, ये लूज छोड़ देता है। जैसे ये सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होगा तो लेंस जो है, when the suspensory ligaments become loose, they stop they stop pulling they stop pulling the eye lens and eye lens become thick। और आई लेंस को पुल करना वो छोड़ देता है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, सो लेट अस कम टू द डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर सस्पेंसरी, ये हमारा आई लेंस है, दिस इज आई लेंस, ठीक है। और ये यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये जो है आपका, दिस वी कॉल एज सिलियरी मसल्स। तो जैसे ही सिलियरी मसल्स लूज होगा, इसको लूज करेंगे तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज होगा, और जब ये लूज होगा तो लेंस भी ऑटोमेटिकली लूज होगा। और लेंस जब ऑटोमेटिकली लूज अप होगा बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, दिस विल बिकम थिक। और जैसे ही लेंस थिक होगा बच्चों, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही लेंस थिक होगा, जैसे ही लेंस थिक होगा, सबसे पहला चीज क्या होगा, इसका कर्वेचर कम हो जाएगा। अगर आप इस पूरे स्फीयर को बनाएंगे बच्चों, तो इसका कर्वेचर कम होगा, रेडियस कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और जैसे ही फोकल लेंथ कम होगा, फॉर्मूला हमें पता है, पावर इक्वल टू 1/f। जैसे ही फोकल लेंथ कम होगा, तो कन्वर्जिंग पावर जो है इस लेंस का बढ़ जाएगा। तो ये सारे चेंजेस होंगे जिसको हम लोग पॉइंट में स्टडी करेंगे एक एक करके। आप वापस आ जाइए यहाँ पर। सो सबसे पहला पॉइंट यह होगा बच्चों कि द फर्स्ट पॉइंट विल बी द कॉन्ट्रैक्टेड the contracted ciliary muscles make the suspensory ligaments loose, or when the suspensory ligaments become loose, they stop the they stop pulling the eye lens and eye lens become thick। eye lens क्या हो जाएगा बच्चों, थिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द आई लेंस हैज स्मॉल फोकल लेंथ बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज लार्ज। तो जैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होगा, वैसे ही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा। और जैसे ही आई लेंस थिक होगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट, बाय द टाइम द आई लेंस विल बिकम थिक, that time only the focal length of the eye lens will decrease। So once focal length will decrease, the converging power of the lens will be large, because power is equal to 1/f। So focal length will decrease, so power of the lens will increase। So the thick, जैसे ही आई लेंस थिक होगा बच्चों, हैज स्मॉल फोकल लेंथ but its converging power is large। I hope you understood this point। Moving to the next point, in this point only we are going to now conclude both the case when we are looking at the far objects and when we are looking at the nearby objects। So what we are going to do, we are going to regulate or adjust the focal length of the eye lens, and this all process is getting done by the eye itself only. We do not need any help from outside, and that's why such ability of the eye is called as the power of accommodation or accommodating power। What is the meaning of accommodation? The eye lens is automatically adjusting their focal length according to the different positions of the object in front of eye। So let us read this point. The ability of eye to focus the distant object as well as nearby object. I have already explained, distant object means what? The objects which are present at the near point, sorry, at the far point. And what is the meaning of uh, nearby object, which are at the least distance of distinct vision, and that is nearby 25 centimeter for the normal eye, that we are going to cover after few points। So at this point, the ability of the eye to focus the distant object as well as the nearby object on the retina of eye by changing the focal length or converging power of its lens
is called the power of accommodation, is called the power of accommodation. So बच्चों, अपना आई जो है, ह्यूमन आई जो है, वो अपने फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमारे आई लेंस से, तो उसके करस्पॉन्डिंग आई जो है अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा, और अगर बहुत नज़दीक है तो भी उसके अकॉर्डिंग जो है आई लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा, और जब फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा तो पावर एडजस्ट होगा। एंड ऑल दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट बच्चों, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो लेंस को टाइट कर देता है और दोनों तरफ से खींच लेता है, दोनों तरफ से खींच करके टाइट कर देता है, लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब हम नज़दीक के वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो उस केस में क्या होता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स जो है वो नज़दीक की वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो लूज पड़ जाता है, और आई जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होता है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ होता है, और उस केस में बच्चों जो आई लेंस का थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो कम होता है और पावर ज़्यादा होता है। आई होप आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन, तो इसको कैच करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। सो यहाँ पर एक और पॉइंट आपके लिए है बच्चों, द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज reached when the object is at a least distance of about 25 centimeter from the eye. Why we call maximum accommodation? Because when we are looking at the far point, our eye is fully relaxed. एंड बच्चों, जैसे जैसे हम लेंस के करीब आते हैं, आई लेंस के करीब आते हैं, हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं इस पॉइंट को। लेट अस सी दिस पॉइंट। सो दिस इज आवर आई लेंस, राइट? सो ये अपना आई लेंस है बच्चों। जैसे जैसे मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ठीक है, और ये आई लेंस है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोजीशन, वो स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आई लेंस। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली आई लेंस के नज़दीक आएगा, बट ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं आ सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नज़दीक अगर आएगा बच्चों, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस इज आवर आई लेंस। तो आई लेंस और थिक होगा और मोटा होगा। तो जैसे जैसे आई लेंस ठीक होता चला जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ जो है वो घटता चला जाएगा, और पावर इज इक्वल टू 1/f। तो जब फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ते चला जाएगा। सो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से यू थ्रू दिस डायग्राम, कि जब हम नियरेस्ट पॉइंट पर होंगे, नियर पॉइंट पर होंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट पर जैसे 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट है, तो जब हम 25 सेंटीमीटर पर आते हैं बच्चों, तो उसी टाइम में मैक्सिमम थिकनेस होगा लेंस में, मैक्सिमम एकोमोडेशन इसी पोजीशन पर होगा। आई लेंस का मैक्सिमम एकोमोडेशन जो होगा वो नियर पॉइंट पर ही होगा, क्योंकि फार पॉइंट पर तो आई रिलैक्स होता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, 25 सेंटीमीटर पर होगा। सर वाई यू आर टेकिंग 25 सेंटीमीटर? बिकॉज 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों आई लेंस से, तो we will not be able to see the object clearly, because this is the range of normal vision. So what is the range of normal vision? So range of normal vision is from 25 centimeter up to infinity. So this is the normal range of vision. So this is normal vision range. So range of this is normal range of vision. I hope you understood this point also. So moving forward, यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड कम बैक टू द प्रीवियस पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो मैक्सिमम एकोमोडेशन जो होगा या कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है, when the object is at a distance of about 25 centimeter, at a distance of about 25 centimeter from the eye. So this is the point. Next point we are going to discuss, a normal eye has a power of accommodation which enables object as far as infinity and close to 25 centimeter to be focused on the retina. So next point क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब नॉर्मल आई, अ नॉर्मल आई हैज पावर ऑफ एकोमोडेशन which enables
which enables object as far as infinity and close to 25 centimeter to be focused on the retina. जो नॉर्मल रेंज ऑफ विजन होता है बच्चों वो फार पॉइंट से लेके नियर पॉइंट तक होता है। फार पॉइंट नॉर्मल आई का इंफिनिटी होता है और नियर पॉइंट जो है नॉर्मल आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसी दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट्स के इमेज को देखते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी दो लोकेशन, इसी दो पॉइंट्स के बीच का जितना भी लोकेशन है वो सारे लोकेशंस के लिए ऑब्जेक्ट्स का इमेज जो है वो रेटिना पर फोकस्ड होता है और बनता है। ठीक है। सो इसी रेंज के लिए आई लेंस जो है वो एकोमोडेटेड होता है, आई लेंस जो है वो एडजस्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the power of accommodation of the eye for a person having normal vision or normal eyesight is about 4 diopter. This is information based question. This is information based question. Diopter is the unit of power. So diopter 4D आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं बच्चों। 4D, कैपिटल डी, डी स्टैंड्स फॉर डायोप्टर। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर। कई बार आपको एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, देयर यू हैव टू से डायोप्टर। ओके। और जब आप स्मॉल लेटर से लिख रहे होते हैं, पूरा लिख रहे होते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल डी। और अगर सिंबॉलिकली लिख रहे होते हैं तो कैपिटल डी लिखना होता है। 4D, आप सिंपली 4D लिख देंगे। ठीक है। सो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन having normal eyesight is about 4 diopter. So next point we are going to discuss, let us discuss next point, range of vision for a normal human eye. This I have already told to you, but here we have that uh, all points together. So let us come to that point also and learn this one also. Okay. So रेंज ऑफ विजन, सो रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई क्या होता है? फार पॉइंट, मैंने आपको बताया फार पॉइंट और नियर पॉइंट ये दो पॉइंट्स होते हैं बच्चों जिन्हें हमें कैच करने की जरूरत है। फार पॉइंट क्या हुआ? द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। कोई भी आंख के लिए फार पॉइंट वह होता है बच्चों, वह डिस्टेंस होता है जहां तक कि ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सके। और नॉर्मल आई के लिए, जो आई बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल आई है, उसके लिए फार पॉइंट जो होता है बच्चों that is infinity. We are writing here, you see, the far point of a normal eye is at infinity. कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ आंख और हेल्दी आंख जो है वो कहाँ तक की दूरी को देख सकता है बच्चों? इन्फिनिटी डिस्टेंस तक देख सकता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस कहने का मतलब है मून, स्टार्स, ये सब बहुत लार्ज डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सन, ये सारे बहुत दूर लोकेटेड है, फिर भी हम इनको देख सकते हैं। और ये फार पॉइंट्स हो गए हमारे लिए। इनफाइनाइट डिस्टेंस कहने का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। तो नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग कैसे समझते हैं? नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट कहने का मतलब है बच्चों, आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, जिस किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं आप देखिए, बट जो नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इन्फिनिटी से आप नजदीक आना शुरू करिए टुवर्ड्स योर आई एंड फाइनली कम वेरी क्लोज टू योर आई नियर बाय 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर से अगर और कम दूरी पर आना शुरू करेंगे आप, तो आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा, इमेज प्रॉपर नहीं बन पाएगा, रेटिना पर स्ट्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा आई में। एंड दैट इज व्हाट we call nearest point. So nearest point for human eye is up to 25 centimeter only, up to 25 centimeter. So we can see the object's image onto our retina, on our human eyes retina, if the object is located at infinity, that is the far point. और near point क्या होता है बच्चों? near point of normal eye is at a distance of 25 सेंटीमीटर। ये कई बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ आई इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कई बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह से डेटा दिया रहेगा। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बच्चों? दैट इज 25 सेंटीमीटर और नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच
an object must be placed so that a normal eye may see it clearly without any strain is called least distance of distinct vision. So the minimum distance, कम से कम दूरी, at which an object must be placed so that a normal eye may see it clearly without any strain is called least distance of distinct vision. This is called least distance of distinct vision. Moving forward, next point बच्चों, the least distance of distinct vision for a normal human eye is again 25 centimeter only. So this point we have discussed. And the range of vision for a normal human eye is from infinity to about 25 सेंटीमीटर. नॉर्मल रेंज क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर के रेंज का वो सारा डिस्टेंस, राइट? So next point, defects of vision and correction. So again, this is very important topic, defects of vision and its correction, that we were discussing in the next video. So in this video this much only बच्चों. इस वीडियो में हमने पावर ऑफ एकोमोडेशंस के बारे में सीखा, कैसे आई लेंस जो है, एक बार एक छोटा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं एंड उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे बच्चों. सो मैंने आपको बताया कि जो डिस्ट जो हमारा ह्यूमन आई है बच्चों, that is having the accommodation power. So what is accommodation power? Depending upon the object position, the eye lens is getting thinner or thicker and adjusting the focal length, and by doing so the power lens, the converging power of the lens is getting adjusted. So जब हम far objects को देख रहे होते हैं, far points पर देख रहे होते हैं, तो आई लेंस जो है वो रिलैक्स्ड होता है और थिन होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, पावर कम होता है, और ऐसे आई को बोला जाता है बच्चों अनअकोमोडेटेड आई और रिलैक्स्ड आई. जब हम नियर पॉइंट्स पर देख रहे होते हैं, कहने का मतलब है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो मैक्सिमम एकोमोडेशन होता है हमारे आईज में, और अंडर दिस कंडीशन जो है आई लेंस कॉन्ट्रैक्टेड होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, फोकल लेंथ जो है बच्चों वो कम हो जाता है और पावर जो है वो ज़्यादा होता है. कहने का मतलब यह है कि जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो हमारा आई लेंस जो है वो सिकुड़ जाता है और फोकल लेंथ कम होता है और पावर जो है लेंस का बढ़ जाता है. ठीक है? और ऑटोमेटिकली बच्चों, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है, नॉर्मल विजन ऑफ जो होता है हमारे आईज के लिए, नॉर्मल रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई, इट इज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को बच्चों बोलते हैं नियर पॉइंट्स और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इनफाइनाइट डिस्टेंस को बोलते हैं फार पॉइंट्स. So this is all about in this video. So the next content, defects of vision and correction, in the next video we'll be covering. Thank you.